وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن القمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال أصلى من خلفكم؟ قال نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اس سند میں منصور، ابراہیم، علقمہ اور اسود یہ 4 تابعین ہیں، لیکن ان میں سے 3 ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں. منصور سے مراد منصور بن معتمر ہیں جو صغار تابعین میں سے ہیں. یہ حدیث بھی اسی کے ہم مثل ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اصلی من خلفکم؟ قال نعم. یعنی تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں وہ پڑھ چکے ہیں، تو اس کا مطلب وہ لوگ پڑھ چکے تھے، یہ لوگ نہیں پڑھے تھے. ہاں. فقام بینہما وجعل احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ، ان میں سے ایک کو اپنے دائیں طرف اور دوسرے کو اپنے بائیں طرف کر لیا. ثم رکعنا، پھر ہم نے رکوع کیا. فوضعنا ایدینا علی رکابنا، تو ہم نے اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا. فضرب ایدینا، تو انہوں نے ہمارے ہاتھوں پر مارا. ثم طبق بین یدیہ، پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان تطبیق کی، یعنی دونوں ہاتھوں کو ملایا. ثم جعلہما بین فخذیہ، پھر ان دونوں کو اپنی دونوں رانوں کے درمیان رکھا. فلما صلی قال ہکذا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسی کے ہم معنی ہے جو پہلے گزر چکی تھی، لیکن بعد والی جو روایت آ رہی ہے وہ ناسخ بن رہی ہے اور یہ حدیثیں منسوخ بن رہی ہیں. چلو قتیبہ بن سعید. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي قال وجعلت يدي بين ركبتي فقال لأبي اضرب بكفيك على ركبتيك قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على ركبي. یہ ابو یعفور جو ہیں، ابو یعفور 2 راوی ہیں، ثقہ دونوں ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ایک ابو یعفور اصغر ہیں اور ایک ابو یعفور اکبر ہیں. یہاں جو کتاب میں ابو یعفور ہیں وہ اصغر ہیں، اور اصغر کا نام ہے عبد الرحمن بن عبید بن نسطاس، اور جو ابو یعفور اکبر ہیں ان کا نام واقد یا وقدان ہے. یعنی بعض لوگوں نے واقد نام ذکر کیا ہے اور بعض لوگوں نے وقدان ذکر کیا ہے. یہ جو اکبر ہیں واقد یا وقدان یہ تابعین میں سے ہیں، لیکن یہ ابو یعفور اصغر یہ تابعی نہیں ہیں. البتہ مصعب بن سعد یہ تابعی ہیں، اور یہ مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے یہ بیٹے ہیں تابعی. انہوں نے کہا کہ میں نے نماز پڑھی اپنے باپ کے بغل میں. مصعب کا بیان ہے کہ میں نے اپنے باپ یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ان کے بغل میں نماز پڑھی. راوی نے کہا وجعل تو یدی بین رکبتیہ، اور میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھے. تو مجھ سے میرے باپ نے فرمایا
इदरिब बिकफ़ई का, तो अपनी दोनों हथेलियों को अपने दोनों घुटनों पर मार यानी रख, घुटनों के दरमियान नहीं, रान के दरमियान नहीं, बल्कि घुटनों पर रखो। काला रावी कहते हैं सुम्मा फालतू ज़ालिका मर्रतन उखरा, फिर ऐसे ही मैंने दोबारा किया, नहीं किसी और वक्त नमाज पढ़ने लगे तो दोबारा वही काम किया। फज़रबा यदैया, तो उन्होंने मेरे दोनों हाथों पर मारा और फरमाया इन्ना नुहीना अन हाज़ा, बेशक हमें इससे रोक दिया गया है। अब इन्ना नुहीना जब कह दिया तो हदीस मरफू हो गई, और सहाबी जब उमिरना बेकदा या नुहीना अन कदा कहता है तो वो हदीस मरफू मानी जाती है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आमिर और नाही आपके अलावा कोई और नहीं था। बेशक हमें रोक दिया गया है इससे, और हुक्म दे दिया गया है हमें इस बात का कि हम हथेलियों को घुटनों पर रखें। तो इसमें सराहत हो गई कि पहले वो हुक्म था तत्बीक वाला, लेकिन बाद में आपने मना फरमा दिया। तो ये हदीस और इसके बाद और भी हदीसें आ रही हैं, वो तत्बीक वाली हदीसों की नासिख हैं। खलफ बिन हिशाम वाला छोड़ दीजिए, उसके बाद पढ़िए। قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت فقلت بيدي هكذا يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه فقال أبي إنا قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب. हाँ, तो ये हदीस भी उसी के हम माना में है, और ये भी इससे भी मालूम हुआ कि तत्बीक वाली बात जो है वो मनसूख है। चलो। قال حدثني الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا शेख क्या إسماعيل. कहेंगे फिर? क्या कहेंगे? नासिख। क्या है तो नहीं, तो ये इल्म नहीं था क्या अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु को? नासिक का इल्म नहीं था? नहीं नहीं, अच्छा हाँ, वो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में यही कहा जाएगा कि नासिख का इल्म उनको नहीं हो सका था, इस वजह से वो काम करते रहे। चलो قال चलें। حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد عن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى ركبي. हाँ, ये भी उसी के माना में है। शेख यहाँ शब्बक्तो का लफ्ज है और ऊपर वाली रिवायतों में तत्बीक का लफ्ज है, दोनों का मफहूम है कि वैसे तशबीक का माना होता है अंगुलियों को अंगुलियों में दाखिल करना, लेकिन यहाँ वही तत्बीक का माना है कि हथेली को हथेली से मिला करके और घुटनों के दरमियान या रानों के दरमियान रखा। चलो। शेख कोई साहब सवाल कर रहे हैं, शायद कहा भाई। हाँ, कौन कहा? तो अब्दुर्रहमान बिन यहया अल-मामली अल-यमानी ने अपनी किताब में तकमील में लिखा है शेख कि हाँ। उनको नस्ख का इल्म था, हाँ, लेकिन वो इस वजह से करते रहे होंगे, हो सकता है उस जमाने में लोग मतलब तदबीक का अमल छोड़ दे रहे हों और उन्होंने मतलब ये समझा होगा कि ये शक्ल भी थी और अगर नहीं किया जाएगा तो फिर ऐसा मतलब सुन्नत तर्क हो जाएगी, तो सुन्नत के मतलब जारी रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। असल में बात चीजें हैं जिनमें अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की इनफरादियत है। हाँ, तो अब इससे तो यही लगता है कि नासिख और मनसूख है। तो अब जिसमें सराहत हो गई कि पहले ऐसा था और अब उससे रोक दी, बाद में उससे रोक दिया गया, तो नासिख और मनसूख और दोनों हदीसों के ज़माने की तायीन हो गई कि फला हदीस पहले की है और फला हदीस बाद की है। तो बहरहाल वो भी एक राय है। चलो अगला बाब शेख। हाँ, आगे चलो।
باب جواز الإيقاع على العقبين. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر التحويل وقال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق وتقارب في اللفظ قال جميعا. قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو अब वहाँ الزبير काला नहीं रहेगा, काला कहाँ से? पहले आ गया, काला जमीअन अखबरना इब्न जुरैजिन, यानी मोहम्मद बिन बकर और जी 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 अब्दुल रज़्ज़ाक ये दोनों कह रहे हैं कि हमें इब्न जुरैज ने खबर दी. जी. قال جميعا أخبرنا ابن جريج أخبرني قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإيقاع على القدمين فقال هي السنة فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل فقال بالرجل. جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. कहते हैं कि हमने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कहा दोनों कदमों पर इक़ा के बारे में, यानी दोनों कदम एड़ी खड़ी रखे और दोनों कदम खड़ा रखे और एड़ी पर बैठे, ये मुराद है इक़ा से. तो इक़ा के दोनों कदमों पर इक़ा करने के बारे में कहा, यानी सवाल किया कि ये कैसा है ये. फ़क़ाला हिय सुन्नह, तो इब्न अब्बास ने फरमाया कि ये सुन्नत है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों कदमों को खड़ा करके एड़ी पर बैठना साबित है. ये बैन सजदतैन की बात है, तशहुद की बात नहीं है, बैन सजदतैन. तो कहा कि ये सुन्नत है. तो हमने उनसे कहा इन्ना लनराहु जफाअन, जफा यजफू से है, जफा यजफू बदसलूकी करना, उजड़पन करना. बेशक हम अलबत्ता इसको आदमी के अंदर उजड़पन समझते हैं, यानी अगर ऐसा कोई करता है तो हम ये समझते हैं कि आदमी उजड़ है, अक्खड़ है, तहजीब के खिलाफ काम कर रहा है. ये बिर रजुल है, रजुल मर्द के माना में, रा को फतहा जीम को जम्मा. और क्या नाम है उनका, इमाम इब्ने अब्दुल बर रहमहुल्लाह, इमाम इब्ने अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने रिजल पढ़ा है, रिजल है. यानी रजुल की जगह पर जफाअम बिर रिजले, पैर में ये अक्खड़पन है. उन्होंने कहा है कि मंजम्मल जीमा फकत गलित, जो रजुल पढ़ते हैं जीम के जम्मा के साथ वो गलत करते हैं. लेकिन जुमहूर उलमा रजुल ही पढ़ते हैं और इब्ने अब्दुल बर का रद्द करते हैं. और कादी आयात कहते हैं वह वल्लज़ी यलीक़ु बिही इज़ाफ़तुल जफ़ाए इलैहि, यानी रजुल ही मुनासिब है, रिजल नहीं, इसलिए कि अक्खड़पन पैर क्या करेगा, आदमी करेगा. तो इब्ने अब्बास ने कहा बल है सुन्नतु नबीयकुम, नहीं बल्कि ये तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है. असल में इक़ा की उलमा ने दो तफसीरें की हैं, इक़ा की दो तफसीरें हैं. एक तफसीर है कि दोनों पैरों को खड़ा रखे, पिडुलियों को खड़ा रखे और सुरीन को जमीन पर टेके और दोनों हाथ भी जमीन पर रख ले. इसको कहते हैं इक़ाउल कल्ब, जैसे कुत्ता बैठता है. तो एक तफसीर यह है. और दूसरी तफसीर यह है, तो ये जो पहली तफसीर है ये मना है कि नमाज में कोई बैठे और इस तरह से बैठे तो नहीं सही है. और दूसरी तफसीर ये है
کہ جب آدمی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے تو قدموں کو کھڑا رکھے اور ایڑیوں پر بیٹھے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جس ایقاع کو سنت نبوی سے تعبیر کیا ہے وہ یہی دوسری تفسیر والا ایقاع ہے. تو معلوم ہوا کہ بین السجدتین ایڑی پر بیٹھ سکتے ہیں. کیا نام تشہد میں نہیں, تشہد کی بیٹھک الگ ہے. پہلے تشہد میں الگ طریقے سے بیٹھنا ہے, دوسرے تشہد میں الگ طریقے سے بیٹھنا ہے. چلو جلسے استراحت میں بیٹھ سکتے ہیں شیخ؟ کس میں؟ جلسے استراحت میں اس طرح سے. ہاں اس میں بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن تشہد میں نہیں, تشہدین میں نہیں. چلو ویسے استراحت میں بھی بہتر وہی ہے کہ بچھا کر کے ہی بیٹھے. چلو جی شیخ. باب تحریم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. وقال حدثنا أبو جعفر محمد بن صباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقارب في لفظ الحديث. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصوافي عن يحيى بن أبي كثير عن حلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن حكم عن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت وَثُقْلَ مياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعد أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون القرآن. قال فلا تأتهم. قال ومنا رجال يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. وقال ابن الصباح فلا يصدنكم. قال قلت ومنا رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد ولجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة عن غنماه وأنا رجل من بني آدم آسف كما يسفون لكني سكتها سكة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقدم ذلك علي فقلت يا رسول الله أفلا أعطها. قال ائتني بها. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. جی پہلے آدمی نماز پڑھتا تھا تو کلام الناس جائز تھا, آپس میں وہ بات چیت کر لیتے تھے. ایک آدمی مسبوق ہو گیا, پہنچا تو صف میں جو اس کے قریب ہے اس سے پوچھ لیتا تھا کہ کئی رکعت ہو چکی ہے, تو بتا دیتا تھا, بول کر کے بتا دیتا تھا کہ 2 رکعت ہوئی, 1 رکعت ہوئی, 3 رکعت ہوئی. تو پہلے یہ جائز تھا, لیکن بعد میں وقوموا للہ قانتین کا جب نزول ہو گیا تب کلام الناس منع ہو گیا نماز کے اندر. اسی سے متعلق یہ حدیث ہے, اس میں یحییٰ بن ابو کثیر, ہلال بن ابو امیہ اور عطا بن یسار, یہ تینوں تابعی ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں. معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. یہ انہوں نے کہا کہ اس اثنا میں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ,
यानी वाकया बयान कर रहे हैं कि एक मर्तबा मैं आपके साथ नमाज पढ़ रहा था, अचानक लोगों में से एक आदमी ने छींका, नमाज पढ़ते हुए छींक आ गई उसको, तो मैंने यरहमुकल्लाह कह दिया। यानी नमाज में जवाब देने की ममानात का इल्म नहीं था, जो छींकने वाले के जवाब की हदीस है वो मालूम थी, तो जवाब दे दिया और कहा यरहमुकल्लाह। फरमानिल कौम बिअबसारिहिम, तो लोगों ने मुझे अपनी निगाहों से मारा, यानी घूर के देखने लगे। तो मैंने कहा वाह सुकला उम्मिया हो। ये शुक्ल में दो लुगत है, एक तो यही है फा को जम्मा काफ को सुकून, दूसरी लुगत है सकल, वा सकला उम्मिया हो। इसका माना होता है औरत का अपने बच्चे को गुम पाना। कहते हैं इमरातुन सकला या सकला, सुकला या सकला व साकिलुन, और कहते हैं सकेलत हो उम्मुहु, उसकी माँ ने उसको गुम पाया यानी मर गया वो। वह सुकला उम्मिया हो, जैसे बुखल और बखल है नहीं दो लुगत, ऐसे शुक्ल और सकल है। ऐ वो लोगों जिनकी माएं उन्हें गुम पाए, जैसे बोलते हैं कहें तुम्हारा सत्यानाश हो, इस किस्म के बहुत से अल्फाज अरब वाले इस्तेमाल करते थे, लेकिन इनका हकीकी माना मुराद नहीं होता था, किसी बात पर तंबीह करना मकसूद होता था। जैसे फीकत तुराब, रगमा अनफहू, ये सब उसी कबील से हैं। माशानुकुम, तुम्हारा क्या हाल है, तंजुरून इलैया, तुम मेरी तरफ गौर से देख रहे हो यानी घूर रहे हो, आखिर वजह क्या है, मैंने कौन सा जुर्म कर दिया। वो लोग अपने हाथों को अपनी रानों पर मारने लगे, यानी जुबान से कुछ कहने के बजाय वो अपने हाथ अपनी रानों पर मार करके इनको खामोश कर रहे थे। फलम्मा रअयतुहुम युसम्मितूननी, सम्मता तस्मीतन तफील से खामोश करना, जब मैंने उनको देखा कि वो मुझे खामोश कर रहे हैं, तो अब जब जहां आता है तो उसका जवाब आता है। जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा, जब तुम मुझे मारोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। जब मैंने उन्हें देखा कि वो मुझे खामोश कर रहे हैं तो मुझे गुस्सा आ गया या मैं गुस्सा हो गया। लाकिन्नी सकत, तो लेकिन मैं चुप हो गया। यानी गुस्सा तो आया कि किसी को मार ही दूं, लेकिन गुस्सा पी गया और खामोश हो गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ ली, फबे अबी हुआ व उम्मी, तो मेरे बाप और मेरी माँ आप पर फिदा हों या आप पर कुर्बान हो। नहीं देखा मैंने किसी मुअल्लिम को आपसे पहले और ना आपके बाद अहसना तालीम मिन हो, जो आपसे अच्छा हो तालीम के लिहाज से, यानी ऐसा अच्छा मुअल्लिम मैंने किसी को नहीं देखा आपके जिंदगी में, आपके बाद किसी को नहीं देखा। वल्लाहि मा कहरानी, कहरा यकहरो फतह से झिड़कना, अल्लाह की कसम ना आपने मुझे झिड़का और ना मुझे मारा और ना मुझे गाली दी। किसी ने इसकी तर्जमानी की है ना कि न झिड़का न मारा न दी कोई गाली। आपके अखलाक का बयान किया है, उसकी तर्जमानी किया है न झिड़का न मारा न दी कोई गाली। काला आपने फरमाया कि बेशक ये नमाज ऐसी चीज है जिसमें लोगों के कलाम की कबील से कोई चीज दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है, यानी जिसको कलामुन्नास कहा जाए,
आपसी लोगों की गुफ्तगू जिसको कहें वो जायज नहीं है। इन्नमा हुआ तस्बीह है, बेशक ये नमाज तस्बीह है, तकबीर है, क़िराअत कुरान है। यानी नमाज में तस्बीह, तकबीर और कुरान का पढ़ना होता है, आपस की कोई बातचीत नहीं होती है। तो कोई बोले, कोई उसका जवाब दे, ये कलामुन्नास है, ये मना है। औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या यानी यही अल्फाज आपने फरमाए थे या इससे मिलते जुलते अल्फाज थे आपके। तो पहले भी कहीं आया था कि ये अदब है, अगर किसी रावी को, किसी तालिब इल्म को शेख के किसी जुमला और लफ्ज के बारे में शुबहा हो जाए तो वो कहे कि हा कदा औ कमा काला फलानुन। तो ऊपर वाली जो हदीस बयान हुई उससे एक बात तो ये मालूम हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ऊंचे अखलाक वाले थे। इससे यह भी मालूम हुआ कि अगर कोई जाहिल हो, कोई मसला ना जानता हो, तो उसके साथ शफकत और नरमी करनी चाहिए। और आप भी जाहिलियों के साथ नरमी करते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत और राफत व मोहब्बत का पता चलता है। और यह भी मालूम हुआ कि पहले कलाम जायज था नमाज के अंदर, बाद में वो मनसूख हो गया। आगे कहते हैं बात हो गई, वो मामला और वाकया खत्म हो गया। मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मैं नए जमाना वाला हूं जाहिलियत के साथ, यानी जाहिलियत से अभी नया नया निकल के मैं मुसलमान हुआ हूं, और अल्लाह ताला इस्लाम ले आया। और बेशक हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काहिनों के पास आते हैं। एक काहिन होता है और एक अर्राफ होता है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। काहिन उस शख्स को कहते हैं जो मुस्तकबिल में होने वाली बातों की खबर दे और असरार की मार्फत का दावा करे, यानी जो गैबी चीजें हैं वो मालूम है मुझे। और अर्राफ उसको कहते हैं जो माले मसरूक की मार्फत का दावा करे। चोरी हो गई कोई चीज या गायब हो गई किसी की कोई चीज, तो बाज लोग दावा करते हैं कि मुझे पता है कि वो चीज कौन ले गया, वो चीज कहां है। तो जो ऐसी बातों का दावा करे उसको अर्राफ कहते हैं। हमारी जुबान में उसको सोखा बोलते हैं, सोखा। तो कहा उन्होंने कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काहिनों के पास आते हैं, यानी गैब की बातें मालूम कराते हैं, उनसे मालूम करते हैं। आपने फरमा फला तातिहिम, तो तुम ऐसे लोगों के पास मत आओ। काला, उन्होंने कहा, और हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो बदफाली लेते हैं। तेरा बदफाली यानी कोई नापसंदीदा चीज सामने आ गई तो जिस मकसद के लिए वो निकल रहे थे उससे वो लौट जाते हैं, उस मकसद को वहीं पर खत्म कर देते हैं। तो हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो बदफाली लेते हैं। तो आपने फरमाया ज़ाका शैउन यजदूनहु फी सुदूरिहिम, ये ऐसी चीज है जिसे लोग अपने सीनों में, अपने दिलों में पाते हैं। फला यसुद्दन्नहुम, तो ये चीज लोगों को रोके ना। और इब्न सब्बाह ने खिताब का सेगा इस्तेमाल किया, खिताब की ज़मीर इस्तेमाल की, फला यसुद्दन्नकुम, तो वो चीज तुम्हें रोके ना। मतलब ये हुआ कि कभी आदमी निकला अपनी किसी जरूरत से और कोई नापसंदीदा चीज देख लेता है तो उसके दिल में खटका और तरद्दुद पैदा हो सकता है, लेकिन
उस तरद्दुद की बिना पर वो अपने मकसद मुलतवी कर दे तो ये मना है। लेकिन दिल में कोई वसवसा पैदा हुआ, कोई खटका पैदा हुआ, उसको अहमियत ना दे और अल्लाह पर भरोसा करके अपने काम के लिए निकल जाए, तो ये सूरत जो है ये बाइसे गुनाह नहीं है। और जो तरद्दुद और खटका हुआ उसकी बिना पर अपना इरादा मुलतवी कर दे तो ये गलत है। रावी कहते हैं कि मैंने कहा और हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो खत खींचते हैं, लकीरें, यानी लकीरें खींच करके वो लोगों को बातें बताते हैं, उनकी किस्मत बताते हैं। तो आपने फरमाया कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से एक नबी खत खींचते थे, फमन वाफका खत्तहु फदाका, तो जिसका खत उनके खत के मुआफिक हो जाए तो वो ठीक है। ये नहीं कहा कि खत खींचना और खत खींच करके किस्मत मालूम करना ये हराम है, ये नहीं कहा आपने, बल्कि फरमाया कि साबिका अंबिया में से एक नबी खत खींचते थे और लोगों को किस्मत की बात बताते थे, इसलिए कि उस नबी की हुर्मत का ख्याल रखा आपने। अगर सीधा जवाब दे देते कि खत खींचना और खत खींच करके किस्मत मालूम करना और किसी को किस्मत बताना ये हराम है, तो जिसके बारे में जिसको ये पता चलता कि कोई नबी ऐसा काम करते थे तो वो वसवसा में पड़ता कि नबी ने ये हराम काम कैसे किया। इसलिए उनकी हुर्मत का लिहाज रखते हुए आपने जवाब खूबसूरती से दिया कि एक नबी ये काम करते तो थे, लेकिन वो खत कैसा होता था, किस तरह से खींचते थे, ये किसी को नहीं मालूम। तो जब नहीं मालूम है तो वो काम गलत हुआ, नहीं करना है। और अगर कोई दावा करे कि नबी का खत ऐसे था और उसकी कोई दलील दे तब वो कर सकता है, लेकिन ऐसी इसका इम्कान है नहीं। ये बात भी हो गई। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि कानतली जारिया, मेरे पास एक लौंडी थी। जारिया कश्ती को भी कहते हैं, लौंडी को भी कहते हैं, लड़की को भी कहते हैं। और जरा यजरी से जारिया मुअन्नस इस्म फाइल का सीगा, बहने वाली, जारी होने वाली चीज। मेरे पास एक लौंडी थी, तरा गनमन ली, जो मेरी भेड़ बकरियां चराती थी। रा यरा लाजिम मुतअद्दी दोनों है, चरना और चराना। वो मेरी भेड़ बकरियां चराती थी उहुद और जवानिया की जानिब। उहुद तो मशहूर पहाड़ है और गज़वे उहुद भी मशहूर है। उसी पहाड़ के पास गज़वा हुआ था, गज़वे उहुद कहलाया। उसी क्या कहते हैं, उहुद पहाड़ के करीब मदीना के शमाल जानिब में जवानिया भी एक जगह का नाम है। दोनों करीब करीब हैं, इसीलिए कहा केबला उहुदिन वल जवानिया। लौंडी जो है बकरियां चराती थी। तो इससे मालूम हुआ कि मालिक अपनी लौंडी से भेड़ बकरी और जानवर वगैरह चराने का काम ले सकता है। एक तो सफर की बात है कि औरत तन्हा सफर नहीं कर सकती है, कोई भी हो, तो वो सफर वाली बात अलग है, क्योंकि वहां आदमी अपने इलाके से बाहर निकल जाता है और अनजान जगह में चला जाता है, इलाके में चला जाता है, वहां खतरात ज्यादा होते हैं। और अपने इलाके ही में है, भेड़ बकरी अपने इलाके में चराने के लिए भेज दिया, यहाँ उतना खतरा नहीं है, इसलिए इसको जायज करार दिया। कहते हैं कि वो बकरी चरा रही थी, फत्तला तो ज़ाता यौमिन, तो एक दिन मैं मुत्तला हुआ, यानी गया कि देखूं क्या हो रहा है, कहाँ चरा रही, क्या कर रही। फैज़ा ज़ेब क़द्दाह बिशात मिन गनमिहा, तो उसकी बकरियों में से एक बकरी को भेड़िया ले जा चुका था। यानी गया
तो लौंडी ने बताया कि भेड़िया आया था और एक बकरी लेके चला गया। तो इसका मतलब कि वो लौंडी ने गफलत की, वो चौकन्ना नहीं रही कि भेड़िया आया बकरी लेके चला गया। वाना रजुलुम मिन बनी आदम, और मैं बनु आदम में से एक आदमी हूं। आसफो आसिफा यासफो, रंजीदा होना, मुझे मैं रंजीदा हुआ जैसा कि और लोग रंजीदा होते हैं, यानी गुस्सा मुझे आ गया जैसे आम बनी आदम को गुस्सा आता है। लेकिन क्या किया मैंने, गुस्से का तकाजा क्या हुआ, लाकिन्नी सकत तो है सक्कतन, सक्का सुख को थप्पड़ मारना, तमाचा मारना, लेकिन मैंने उसको एक थप्पड़ मार दिया, यानी और कुछ तो नहीं किया, लेकिन एक थप्पड़ गुस्से में मार दिया। अब मार दिया, उसके बाद एहसास हुआ कि नहीं मारना चाहिए था, लौंडी थी, जानबूझ के तो उसने भेड़िया के हवाले किया नहीं होगा। फिर मैं आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आपने इस मामले को बड़ा अजीम करार दिया मुझ पर कि तूने गलत किया मार करके। तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं उसको आजाद न कर दूं? तो आपने फरमाया इतनी बेहा, तू उसे मेरे पास ले आ। यानी फौरी जवाब नहीं दिया, फरमाया कि उसको मेरे पास लेके आओ तब मैं बताऊंगा। फातई तो हूँ बिहा, मैं आपके पास उसको ले गया। फ़काल अल्लाह, तो आपने उस लौंडी से फरमा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? उसने कहा आसमान में। आसमान का मतलब ऊपर है अल्लाह ताला। आपने फरमाया मैं कौन हूं? उसने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं। तो आपने फरमाया आतिक हा, तू इसको आजाद कर दे, इसलिए कि ये मोमिना है। तो इससे ये मालूम हुआ कि मोमिन गुलाम और मोमिना लौंडी को आजाद करना अच्छा है, बेहतर है। लेकिन बाद कफारात हैं जिनमें ईमान की शर्त है, मोमिन ही को आजाद करना है, लेकिन जहां शर्त नहीं है वहां आजाद कर सकते हैं। अब लौंडी ने ऐन अल्लाह के सवाल का जवाब आसमान की तरफ इशारा करके बताया कि अल्लाह ऊपर है। तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने अस्मा और सिफात के बारे में जो बात कहा वो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और मजहब बन गया। इस्तिवा के बारे में उन्होंने, उनसे किसी ने पूछा था ना, अर रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है। किसी ने पूछा कि इमाम साहब ये इस्तिवा का क्या माना है? तो उन्होंने फरमाया था, उसको याद रखना चाहिए, अल इस्तिवा मालूम, हाँ, ये तो मजहूल, अल इस्तिवा मालूमुन वल कैफो मजहूलुन वल ईमानु बिही वाजिबुन वस्सवालु अन्हु बिदअतुन। यही अकीदा तमाम अस्मा और सिफात के बारे में है अहले सुन्नत वल जमात का। शेख जी, ये आसमान अल्लाह रब्बुल आलमीन का उसने तारुफ पेश किया, इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने गवाही दी। क्या अमाल सालिहा के बगैर हम मोमिना कह सकते हैं? वो तो अंदरूनी बात है ना बेटा। इससे ये मालूम होता है कि अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देता है तो उसको मोमिन माना जाएगा। कई हदीसें आप पढ़ भी चुके हैं पहले, हाँ, वल्लाहु यतवल्ला सराइर, कि बातिन का मामला अल्लाह के हवाले है। जाहिर में अगर कोई शहादतैन का इकरार करता है तो उसको मोमिन माना जाएगा। अब एक आदमी है कि वो अभी ईमान लाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या अशहदु अल्ला इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ा, उसको अमले स्वालिह का मौका ही नहीं मिला, तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान है, उसकी बख्शिश होगी। तो जो हदीसें हैं मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना वगैरह, तो उसका मफहूम यही होता है। कोई साहब कह रहे हैं घंटी खत्म हो गई, चलो तो खत्म कर दो।
اس کے بعد اسحاق بن ابراہیم والی سند چھوٹی سی آئے گی, اس کو چھوڑ کر کے پھر آگے سے پڑھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.